पहली बात तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा बेयर बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को कि हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया और हमें एक रेस्क्यू टीम में काम करने का मौका मिला। जो कि अभी हम जैसे हमारा वर्क होता है कि हम जो पैराग्लाइडर्स होते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ऑल ओवर वर्ल्ड से, तो उन लोगों के लिए हम रेस्क्यू का काम करते हैं, जाकि उन्हें कोई नुकसान हो, कहीं उनका ग्लाइडर क्रैश हो जाए या फिर हमें कहीं जाना पड़े, तो हमारे रेस्क्यू टीम को एक कांटेक्ट होता है नीचे से सैटेलाइट से कि जैसे कि उन्हें यहाँ पे कोई एक पैराग्लाइडर ये हो गया, क्रैश हो गया, वहाँ जाना है और उन्हें वहाँ से रेस्क्यू करके हमें उन्हें मेडिकल होगा तो मेडिकल में पहुँचाना है, या फिर वो सेफ़ होंगे तो उन्हें सही तरीके से उन्हें लैंडिंग पॉइंट पे या उनके रूम तक ड्रॉप करना है। और हमें बहुत से लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, नए नए टेक्निक सीखने के लिए मिले, और रेस्क्यू कैसा होता है, क्या होता है सिविल में और हमारे डिफेंस में, वो हमें सीखने का नया मौका मिला। और कुछ हमें उन्हें गाइड करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। पैराग्लाइडिंग साइट पर पहुंचते ही पैराग्लाइडिंग मैनेजमेंट की टीम की तरफ से सबसे पहले पैराग्लाइडर के पायलटों को उड़ान के नियमों के बारे में जानकारी दी। बता दें कि हर रोज की तरह आधे घंटे तक टास्क से संबंधित ब्रीफिंग दी गई। It should be listed as this miraculous task when everything looks bad, but suddenly you have a fully valid 1000 points task. I would like to thanks to many people that contributed yesterday. Of course, the task committee put this well, but there was very creative comments from few pilots. I really don't remember, but I would like to take them anywhere, because somebody from the pilot said, let's change the endo-speed section. That was a brilliant idea because, okay, that was, what's your name, sorry? Vitaly. Stand up, Vitaly. Very clever guy. If we kept like it was designed, most likely the last leg would go into the mountain, into the clouds, and maybe it would be not possible to do it in such a brilliant and easy way. So thank you, Vitaly. So this is just one good example why, whenever at the end of the briefing, when are there any questions, if you have whatever, doesn't matter. You should say it loudly, because from time to time, experienced people, task committee meet director, of course, can have different ideas, can be just following their own path, and it could be not perfect. So apart from that, the task was very interesting. Although the distance between these two turn points was something like 5 kilometers only, but obviously it was competitive. We had many pilots in goal. Task is worth 1000 points, and congratulations to the winner, Alexander Skvortsev. Bravo, where are you? So this is the guy. Very tight with Austin Cox, but okay, somehow he managed, and okay. No surprises in the female ranking. Joanna Kotsot won the task yesterday. Bravo! Where are you, Joanna? Bravo! Well done. Because when the cloud is going down here, all of us, we just soaring near to the cloud. So it's not necessary to make turns. Just go one by one. It's easier for everybody. But some people, everybody just surfing near to the cloud, but some people try to climb through this. It's not right. Okay. Surfing cloud is different. Okay, that was also brought yesterday by Jimbo, when he said, or maybe the day before, when you're on the top of the lift, there is no need anymore to be aggressive, whatever. You're just floating around, so no need to make sharp turns and this. Here, it's working everywhere. There is no crisis. There is no such a thing that somebody goes down in the beginning of the task because it's weak or no thermals. It's not the case. So please, fair play. It's dangerous. We are a big family here. We are 65 pilots together, including flying me and my staff. So we are almost 70. So please, please respect the rule. It's easy. It's better. You will feel better if you play in synchronization and harmony with the others. Okay, enough of poetry. Let's do the business now. Task committee, timings and place of takeoff.
Of course, it's a great pleasure to be here in to provide rescue duties in Paragliding World Cup. And from the behalf of my whole team, I want to know to all participants that we are here, stand by always, and I wish them all the very best to all participants. This is my first time come to beer building to join the competition, and I feel India's amazing place. This is the best place to paraglide, and I was very lucky. And the PWC, everyone very kindly and organized very good. ग्यारह बजे से लेकर खेल को आगे बढ़ाते हुए अपनी उड़ान भरी। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के छठे दिन प्रतिभागियों को बिलिंग से अहजू तक और अहजू से जोगिंदरनगर और जोगिंदरनगर से बिलिंग तक का 4 चक्कर लगाने का लक्ष्य दिया गया था। गुरुवार को 23 देश के 65 प्रतिभागियों ने उड़ान भरी। देखिए कोमल, मैं यहाँ पे ना 2002 से आ रहा हूँ इस साइट पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने यहाँ लगातार डेवलपमेंट देखी है। जो बीपीए है, बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है, वो लगातार जो है इस इवेंट को आगे बढ़ा रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई और संस्था मैंने आज तक देखी है जो इतना लंबा कैरी कर रही है। और इस बार तो उन्होंने जो 1.5 साल के भीतर 3 बड़े इवेंट करवा दिए हैं, और हर आदमी जो है वो मन से लगा होता है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है, उनके जितने भी मेंबर, जितने भी नॉर्मल पायलट्स उनकी डेली फ्लाई करते हैं, यहाँ पे टेंडम में ले जाते हैं, वो सारे बच्चे इन दिनों सारी चीज़ें छोड़ के इसमें जुट जाते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ गजब का जुनून है। लोग नॉर्मली, हमारे बच्चे हैं घरों में, वो हम खुद बच्चों के लिए खिलौना लाते हैं तो हम लोग जो है क्रिकेट का बैट ले आते हैं। आज बच्चों को पूछ लो, क्रिकेट के एक्सपर्ट बने हुए हैं। लेकिन यहाँ के बच्चों का माइंड सेट अलग है, उनका जुनून अलग है, उनको हवा में उड़ना है। और यही जुनून जो है मुझे लगता है कि इस साइट को जो है अब एक इस लेवल पे ले गया है कि अब ये इंडिया का जो है पैराग्लाइडिंग कैपिटल है। और इसके लिए बीपीए, अनुराग शर्मा लंबे समय से लगे हुए सारे। अभी मुझे अच्छी तरह से याद है, जब पहली बार मैं यहाँ आया था तो कुछ भी नहीं, सिंपल पहाड़ी थी। अब देखिए आप टेक ऑफ पे मैट है, बाकी चीज़ें हैं, बाकायदा ब्रीफिंग के लिए जो है टाइम होता है। अदरवाइज़ जो है पहले जो सीनियर पायलट्स आते थे उनको पूछ के जो है यहाँ से शुरू होता था। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी इसको काफ़ी प्रमोट किया। आई स्टिल रिमेंबर कि कई लोगों के टिकट्स भी स्पॉन्सर किए थे उन्होंने शुरू में। 2002 की बात है, बाकायदा एक कॉलोनी उनके लिए बना दी गई तो वहाँ आए हैं। और उसी का नतीजा है कि आज लोग यहाँ आने के लिए वैसे ही लालायित रहते हैं जैसे किसी क्रिकेटर को लगता है कि अगर उसको कहा जाए कि तूने सिर्फ एक ही मैच खेलना और कहाँ खेलना है, तो वो कहेगा कि मैं लॉर्ड्स में खेलूंगा क्योंकि क्रिकेट का मक्का है। तो दुनिया भर के जो पायलट्स हैं उनको लगता है कि हमको यहाँ ज़रूर आना है। अभी भी आपने देखा होगा कि जो पार्टिसिपेंट आए उनके अलावा जो हैं उनसे 3-4 गुना ज़्यादा जो है दूसरे पायलट्स हैं, क्योंकि उनको भी है कि हम भी वहाँ पर उड़े हुए हैं।
Kanov. I am the Life Tracking and Safety Manager of the Paragliding World Cup Association. I'm here in Birbiling as an official representative of the World Cup. My main work here is getting pilots safety, life tracking, watching where the pilots are, and if in case of emergency or whatever, coordinate with the local organizers how to quickly and safely respond and how to easily get pilots back. So I'm here. Main concern now at the moment is the network coverage is not top, so we have to make more focus on safety of the pilots because we are losing data at some points, but I hope for the next competitions we will improve, India will improve that here so we can have bigger and more safe and more relaxed competition for me. सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज के टास्क के साथ पैराग्लाइडर्स ने पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के 6वें दिन की उड़ान भरी है। वक्त है इसी बीच एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के इस भाग के प्रायोजक है हिमाचल टूरिज्म और काया एंटरटेनमेंट। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल। स्वागत है एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के इस मुकाबले में यूएसए के ऑस्टिन कॉक्स लगातार नंबर 1 पर बने हैं। अब देखना होगा कि आज और आने वाले दिनों में वो लगातार अपनी पोजीशन बरकरार रखते हैं या इसी बीच कोई उन्हें टक्कर दे पाता है। लगभग 4 बजे के आसपास पैराग्लाइडर्स ने सक्सेसफुल लैंडिंग की। जैसे जैसे यह मुकाबला कड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे देश विदेश से आए पैराग्लाइडर की चुनौतियां बढ़ती जा रही है। रोमांचक गतिविधियों से भरे इस दिन का आनंद सभी पैराग्लाइडर्स ने उठाया है, क्योंकि हम खेलों से मिलने वाली खुशियों से जीवन का मूल्यवान जश्न मनाते हैं। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के 6ठे दिन यूएसए के ऑस्टिन कॉक्स ने बढ़त बरकरार रखते हुए 2991 अंक के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। भारत के रणजीत सिंह ने अपने प्रदर्शन में बेहतरीन सुधार करते हुए 2871 अंक के साथ दूसरा पायदान छू लिया है। पोलैंड के डोमर कैपिटा ने 2844 अंक के साथ तीसरे स्थान पर चल रहे हैं।
First day I had a really good task. I was able to break away and finish 15 minutes ahead of the rest of the pack. That gave me a good lead. Since then my strategy has been to just stay with the gaggle, not take any risks, get in good with everybody and not push out on my own. So yeah, the last 3 days have been nice. We had one rest day because of low cloud base, but yeah, we've had nice classic beer conditions, and then today was a little bit of a switch. Kind of reminded me more of like Brazil or Colombia type conditions. A little bit slower climbs, trickier transitions. ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लाइक काफ़ी फॉरेनर पायलट्स आए हुए हैं, मेरे सीनियर पायलट्स भी यहाँ पे हमारे साथ हैं, तो इनके साथ उड़ना और इस कंपटीशन में कम्पीट करना लाइक वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरे 2 टास्क कंप्लीट हुए हैं इन उसमें, तो अभी तक बहुत खुश हूँ मैं अपनी परफॉर्मेंस से। किस तरह की आ रही हैं? चुनौतियाँ थोड़ा मौसम थोड़ा ख़राब हो जाता है, बाकी सब तो ठीक है। बीर इज़ द सेफेस्ट प्लेस टू फ्लाई। महिला वर्ग में पोलैंड की जोना कोकोट 2486 अंक के साथ पहले स्थान पर, जर्मनी की डरिया अल्टकेवा 1329 अंक के साथ दूसरे स्थान पर और ब्राजील की मरीना ओलेक्सिन 1232 अंक के साथ तीसरे स्थान पर चल रही है। टीम वर्ग में पहले स्थान पर भारत की ड्रीम टू फ्लाई 7112 अंक के साथ पहले स्थान पर आई है और दूसरे स्थान पर पैराबिलिंग टीम 1786 अंक के साथ चल रही है, जबकि पहले स्थान पर चल रही जैविक की टीम 1742 अंक के साथ तीसरे स्थान पर चली गई है। तो आज के जो प्रोविज़नल रिज़ल्ट आ चुके हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। ओवरऑल कैटेगरी में यूएसए के ऑस्टिन कॉक्स 2991 अंक लेके नंबर 1 पे बढ़त बनाए हुए हैं। नंबर 2 पे भारत के रंजीत सिंह 2871 अंक लेके दूसरे पायदान पे हैं और तीसरे पायदान पे पोलैंड के डोमिनिक कैपिका 2844 अंक लेके तीसरे स्थान पे बने हुए हैं। मैं आपको अभी जो फीमेल पायलट्स का रिज़ल्ट भी प्रोविज़नल बता रहा हूँ। पहले स्थान पे पोलैंड की जोना कोकट 2486 अंक लेके इन्होंने लगातार जो पहले दिन से ही बढ़त बनाई हुई है कंपटीशन में। जर्मनी की डारिया एल्टिकोबा
1329 अंक लेके दूसरे स्थान पे बनी हुई हैं और ब्राज़ील की मैरिना ओलेक्सिना 1232 अंक लेके आज तीसरे स्थान पर रही हैं। पिछले 4-5 दिनों में आपने देखा होगा कि काफ़ी रेसिंग था, बट मौसम की वजह से कई बार बाहर भी लैंड हो रहे हैं पायलट्स और गोल में भी पहुंच रहे हैं। तो आज का एक्सपीरियंस मेजरली बहुत ही अच्छा था। आई कम्पीट इन 3rd प्लेस, सो काफ़ी अच्छा था आज का एक्सपीरियंस। और मौसम थोड़ा सा अगर और अच्छा होता तो शायद और अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे हम लोग। सो वी कैन रिप्रेजेंट इंडिया इन द टॉप। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के 5वें दिन बीड़ कार्निवल का आयोजन किया गया। पहली सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों ने एक के बाद एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। क्या बात तेरा फुरिए कंट पटवारी तेरा फुरिए। सांस्कृतिक संध्या में कला केंद्र के मंच पर प्रदेश के कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कलाकारों ने हिंदी, पहाड़ी, पंजाबी व फिल्मी गीतों व नृत्यों की प्रस्तुतियों से संध्या को आकर्षक बनाया। बता दें कि इंडियन आइडल फेम और गायक कुमार साहिल ने पहली सांस्कृतिक संध्या में खूब रंग जमाया। जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपना, फिदा हो तुझ पे मेरी जान बेपना। एसडीएम सर हिमाचल ताज हिमाचली टोपी भेंट करते हुए आपकी तालियां ज़रूर हमें चाहिए और तालियां आप जी भर के भेजिए। हिमाचली शॉल यहाँ भेंट करते हुए और बीट बिलिंग कार्निवल का ये यादगार स्मृति चिन्ह डीसी सर को। इसके बाद पुलिस बैंड हारमनी ऑफ पाइन ने ऐसा रंग जमाया कि देर रात तक लोग झूमते रहे।
हार के जो नहीं हारते, अपने उत्साह को जो ख़त्म नहीं करते, जीत उन्हीं की होती है एक दिन जो अपने हर मुसीबत का सामना करते हैं। इसी तरह से कई परिस्थितियों का सामना करते हुए पैराग्लाइडर्स ने आज के मुकाबले को संपन्न किया। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुकाबले के साथ। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के इस भाग के प्रायोजक है हिमाचल टूरिज्म और काया एंटरटेनमेंट।